معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ کیجئے، تبصرہ کیجئے، ضرور کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کمنٹ کیے جائیں، تبصرے کیے جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، تبصرہ کرنے سے آدمی کی اہلیت، اس کا علم سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنے کی اس کی معلومات ہیں، کیا کچھ وہ جانتا ہے۔ کمنٹ ہونا چاہیے اور اچھے انداز میں ہونا چاہیے، اس طریقے سے جس طریقے سے مسلم امہ کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سوال کریں اور سوال کا جواب لیں اور سوچیں۔ یہی وہ واحد راہ ہے جو ہم کو صحیح صراط مستقیم تک لے جائے گی اور ہمیں اسلام کی روح تک پہنچ سکیں گے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے صراط مستقیم کی پہچان۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف ماحول نظر آتا ہے، مختلف سوچ نظر آتی ہے اور مختلف قسم کے فتاوی نظر آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں قرآن ہی صراط مستقیم ہے، کچھ کہتے ہیں حدیث مبارکہ صراط مستقیم ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر کوئی قرآن کا مطلب جو خود سمجھ رہا ہے اسی کو صراط مستقیم کہتا ہے، اور دوسرا جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور و فکر کریں، دیکھیں، سمجھیں تو ہمیں قرآن کی صحیح تفسیر اور جو ایک اگر صراط مستقیم ہے تو وہ ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہر کوئی اپنی رائے کو ہی صراط مستقیم کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہ ایسا ایک مہمہ بن چکا ہے کہ صراط مستقیم کی تلاش ایک بہت بڑی تلاش بن چکی ہے اور ایک بہت بڑا مہمہ بن چکا ہے جو کسی طرح بھی حل نہیں ہوتا۔ آئیے ہم قرآن شریف سے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں صرف یہ نہیں کہ قرآن شریف صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے، حدیث مبارکہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں، قرآن شریف صراط مستقیم کسے کہتا ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے حساب سے صراط مستقیم کیا ہے، اور آپ اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور دل کھول کر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کمنٹس آئیں گے میں ان کا جواب بھی دوں گا۔ آئیے سورۃ فاتحہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، صراط مستقیم کی نشاندہی کیسے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط ان لوگوں کی راہ ہے اے اللہ تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی یہ نشانی ہو گئی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اب دیکھیے انعام کو دیکھتے ہیں کہ انعام کیا ہے۔ کیا انعام دنیاوی دولت ہے، دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی شان و رتبے ہیں؟ کیا یہ چیز انعامات ہیں؟ معزز دوستو، یہ انعامات نہیں ہیں۔ اگر یہ انعامات ہیں تو یہ انعامات ہم مسلمانوں سے زیادہ کفار پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، ان پر یہ دنیاوی مال و متاع ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا پر ان کی حکومت ہے، روب دبدبہ ہے، ہر کام دنیا کا ان کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر انعامات تو ان پر ہوئے، سیدھی راہ تو ان کی ہو گئی نا، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔
यानी इनामात वो जो हमको अल्लाह ताला के साथ जोड़ें, अल्लाह ताला की हमको शहनशाही में लेके जाएं, अल्लाह ताला की बादशाहत में जो हमको लेके जाएंगे वो इनामात होंगे। अल्लाह ताला से हमारा राब्ता जिससे मजबूत होगा वो इनामात होंगे। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ जो मुख्तसर तौर पर बताया था कि सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, इसके बारे में कुछ और भी अल्लाह ताला ने कहा है कुरान शरीफ में। तो वो हम देखते हैं कि सूरत निसा की आयत नंबर 69 है। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युतिल्लाह व रसूला, जो अताअत करे, जिसने अताअत की अल्लाह की और रसूल की, फउलाइक मअल्लज़ीना, पास वो उन लोगों के साथ होंगे, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीना सिद्दीकीना शुहदा व सालिहीना। वो लोग कौन हैं? नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। व हसना उलाइका रफीका, और वो अच्छे साथी हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुम मिनल्लाह, और ये अल्लाह ताला की फजल से, व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह ताला खूब जानता है, अल्लाह ताला जानने वाला काफ़ी है। आइए अब देखो, यहाँ किसी दुनियावी मालो मता का जिक्र है कि जिसके पास दुनियावी माल ज़्यादा होगा, नहीं जहाँ हशम ज़्यादा होगा, उसके पास बादशाहतें होंगी, उसके पास हुकूमतें होंगी और बहुत चीज़ दुनिया पर रोब दबदबा होगा, क्या उसको इनाम अल्लाह ने कहा है? उसको अल्लाह ताला ने इनाम नहीं कहा। क्या अम्बिया के पास हुकूमतें थीं? अम्बिया के पास दुनियावी हुकूमतें थीं, उनके पास दुनियावी मालो मता था। और सिद्दीकीन जो थे उनके पास क्या था? शुहदा के पास क्या था? इस तरह सालिहीन के पास क्या था? वो इनामात थे। जब उनकी तस्दीक हो गई तो हमारे लिए रास्ता कौन सा बचा? हमारे लिए इनाम याफ्ता लोग कौन हुए? नबी हुए, सिद्दीक हुए, शुहदा हुए और सालिहीन हुए। और उनका रास्ता वही सीधा रास्ता होगा। यानी देखिए, आज क्या इसमें इन चार जमातें जो अल्लाह ताला ने, चार ग्रोह जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान किए हैं, को इनाम याफ्ता हैं, तो इनमें दुनियावी मालो मता वाला तो कोई भी नहीं है। वो मुसीबतें बर्दाश्त करने वाले, वो तकलीफें उठाने वाले खुदा की राह में, और अल्लाह ताला को राजी करने वाले लोग। अच्छा, इसके साथ एक बात और जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने कह दी, वमन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा और जो रसूल की इताअत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तरीक़ेकार जो अम्बिया ने हमें बताया, उम्मतों को बताया कि इस तरह तुमने अल्लाह ताला की इताअत करनी है, अल्लाह ताला की इताअत के बाद इनामात होंगे। अगर कोई शख्स ये कहे मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इनाम याफ्ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं इनाम याफ्ता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो वो लाह अमल है, वो जो तर्ज़ अमल है जो हमने इस दुनिया में इख्तियार करके सिरात मुस्तकीम पर चलना है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम शार जो है वो हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए ज़रूरी है, इन पर हमने अमल करना है और ये इनका अमल करते हुए हम चलेंगे। सिरात मुस्तकीम वही रास्ता, वही तरीक़ेकार जो इन चार ग्रोहों ने, अम्बिया ने, सालिहीन ने, सिद्दीकीन ने, शुहदा ने इख्तियार किया था, वही रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इबादत अल्लाह और बंदे का ज़ाती मामला है। अब ये सिरात मुस्तकीम जो है वो क्या बंदे का इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला से तल्लुक़ जोड़ना, उसके रास्ते पर चलना, उसके लिए कोशिश करना, वो सिरात मुस्तकीम होगा या कुछ और भी होगा? आप सब लोग ये जानते हैं, जब एक शख्स बालिग होता है तो उस पर शरीयत के कवानीन लागू होते हैं, और जब तक उसकी होश कायम रहती है, वो अपने हवास में रहता है, तो उस पर शरीयत का हुक्म जारी रहता है और उस पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी होता है। क्या ये जो दुनियावी मामलात हैं, जो दूसरे लोगों की, अपने जैसे भाइयों की
खिदमत करना, जैसा कि हदीस मुबारक है, अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। किसकी खैर खाही? अपने जैसे दोस्तों की, अपने जैसे इंसानों की, अपने जैसे मुसलमान भाइयों की खैर खाही करना, यही दीन है। अद्दीन नसीहा, मुकम्मल पूरे का पूरा दीन जो खैर खाही है। इसमें अपनी ज़ात की खैर खाही भी आ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मामला हम दूसरे से मुतल्लिक होंगे। अगर एक शख्स दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया हुआ है कि जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा वही बाकी बचेगा, और जो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा वो बाकी नहीं बचेगा। ये दुनियावी मामलात में यही है। यानी अगर हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद रहेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उसको बेहतर बनाने के लिए अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की खिदमत करेंगे और उनके कमियों को पूरा करेंगे, जब तो वो क्या करेंगे? हम एहसान कर रहे होंगे। एहसान क्या है? एहसान की मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं। कोई कहता है किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देना, कोई कहता है नहीं, एहसान ये है अगर किसी दूसरे में कमी देखते हो तो उसको किसी कमी को पूरा करते हुए उसे मुकम्मल कर देना, उसे मुकाम पर कायम कर देना, ये एहसान है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, देखिए अल्लाह ताला ने कहा मैं राज़िक हूँ, बाकी वो राज़िक है, लेकिन रिज़्क़ कमाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ती है। वो जो आयत मुबारक है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अगर हम उस पर गौर करें, उसको देखें, तो ये बात आम तौर पर ये कही जा सकती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया था, बाकी दुनियावी कामों के लिए इंसान को पैदा नहीं किया। जिन्नात और इंसान को दुनियावी कामों के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ जो ये बात, अगर आप इंसानियत के लिए बेहतर हैं तो आप इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हैं। अगर आप इंसानियत के लिए बेहतर नहीं हैं तो आप इनाम याफ्ता लोगों के लिए नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं चार ग्रोहों को अगर हम देखेंगे, जो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा व सालिहीन हैं, तो उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, लोगों की खिदमत की है, लोगों के काम आए हैं। एक वाक़या मुझे याद आ गया, वो मैं जाते जाते बयान कर दूं। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, खलीफा होते हुए वो एक बूढ़ी औरत की खिदमत करते थे और उसको ये तक नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। ये वाक़या आप सब ने सुना हुआ है। क्या ये इस बात की वजह निशानी नहीं है कि खिदमत ही असल इनाम याफ्ता लोगों की निशानी है? अगर हम दूसरे की खिदमत करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पर अल्लाह करम है, आप पर अल्लाह ताला का इनाम है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा, यानी कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ असरात होते हैं। अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमें इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए असरात पैदा नहीं कर सकती है तो वो कोई नमाज नहीं है। और हमें डरना चाहिए कि कहीं वो नमाज हमारे मुंह पर न मार दी जाए, हमारे रोज़े हमारे मुंह पर न मार दिए जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अगर कोई सख्त बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ये मसला बहुत पेचीदा है और इसको समझना ही अपने ईमान को रूज तक ले जाना है, उसको मुकम्मल करने पर मौकूफ़ है। अगर हम इस बात को नहीं समझ सकेंगे तो हमारा ईमान भी नामुकम्मल रहेगा और हम इनाम याफ्ता लोगों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर हम ईमान याफ्ता लोगों के साथ, इनाम याफ्ता लोगों के साथ शामिल हो गए, उनकी जमात में शामिल हो गए, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे और हमें वो अल्लाह ताला की नेमतें मिलेंगी जिनका रब ताला ने हमसे वादा किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।